Okay, dear students, today the topic of our discussion is pharmacology of H2 receptor antagonists. Pharmacology of H2 receptors antagonist. Okay, first let me to write the name of drugs. First drug is cimetidine. Cimetidine. Second drug is ranitidine. Ranitidine. The third drug is nizatidine. And the fourth drug is famotidine. Right? There are four drugs in this category. Okay, let's come towards the uh, mechanism of action. Mechanism of action of H2 receptor antagonists, right? H2 receptor antagonists, 2 receptor antagonists blocks blocks H2 receptors, 2 receptors on parietal cells, on parietal parietal cells, and suppress the gastric acid secretions, right? This is the mechanism of action of these drugs, or you people can say that the pharmacodynamics. Pharmacodynamics. Listen, as you people know that there are different types of histamine receptors. As you people know that H1 histamine receptors, H2 histamine receptors, H3 histamine receptor, and H4 histamine receptor. These drugs, H2 receptor antagonist, only inhibits H2 receptor, right? ये सिर्फ H2 receptor को inhibit करती हैं. These drugs not inhibit H1, H3, and H4. Means that these drugs have no effect, or you can say that lesser effect, right? Mechanism of action of these H2 receptor antagonist. Now come towards the pharmacokinetics. 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 Pharmacokinetics of H2 receptors antagonist. There are two terms, pharmacodynamics and pharmacokinetics. Pharmacodynamics means what these drugs are going to do with the body, right? Pharmacodynamic. As you people can say that these drugs are going to block H2 receptor and are going to decrease the level of HCl in the stomach parietal cells. So you people can see this is how the drugs are going to interfere with the body. But in case of pharmacokinetics, what body basically going to do with drugs? So this is pharmacokinetic. Okay. In pharmacokinetic, you people can observe or see from these drugs like cimetidine, ranitidine, ranitidine, and famotidine. ये तीन जो drugs हैं, these drugs undergo high first pass metabolism, right? This is the first point. This is the first point of pharmacokinetic. And nizatidine, from all these four drugs, nizatidine undergo very less the phenomena of first pass metabolism. First pass metabolism.
Okay, and these drugs are excreted from feces and urine. मतलब ये फीसेस में से भी निकल जाती है बॉडी से, बट आफ्टर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटी, और यूरिन में से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो फीसेस में निकलेगी तो इट्स मीन्स दैट कि वो लीवर से उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, मतलब कि वो लीवर से पास हुई है, लीवर, ठीक है। और अगर यूरिन में हुआ, इसका मतलब वो किडनी से हो गया ये, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ दिस ड्रग्स। नाउ कम टुवर्ड्स द क्लिनिकल यूजेस, clinical uses of H2 receptors antagonists, right? Here are the following clinical uses of H2 receptor antagonists. The first one is GERD. First one is GERD. What is meant by GERD? GERD mean gastroesophageal reflux disease. Okay, GERD means gastroesophageal reflux disease. What is meant by this? Gastroesophageal reflux disease. In this disease, the stomach content try to go back into the esophagus, as the name indicates. Gastroesophageal reflux. Reflux means regurgitation, backward movement. तो इन GERD इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टमक का कंटेंट होता है, जो वहाँ पे जब खुराक पहुंचती है तो वहाँ पे जो एसिड रिलीज होता है, वो सारा कंटेंट पीछे की तरफ जो है ना वो बैक फ्लो करता है, ठीक है, जिसको GERD बोलते हैं। जिसमें उसमें क्या होता है, एसिड की सिक्रीशन बढ़ने की वजह से वो जो है ना वो पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो दैट इज GERD। जैसे आप कहते हो कि मुझे जो है ना वो खट्टे ढिकार आ रहे हैं, ठीक है, और मेरा जो है ना स्टमक का जो कंटेंट ऐसा लगे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, कभी कभी आप फील भी करते हो अपने माउथ में वो कंटेंट, ठीक है, ओके। तो सेकंड वन इज पेप्टिक अल्सर। सेकंड वन इज पेप्टिक अल्सर, आप लोगों को पता ही है, पीपल ऑलरेडी नो इट। नेक्स्ट वन इज डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज डिस्पेप्सिया, ओके। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस, राइट। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेस की वजह से, मैंने बताया था स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द अल्सर पैथोफिजियोलॉजी और अकरेंस ऑफ अल्सर। तो जब स्ट्रेस होती है तो एसिड की सिक्रीशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, स्टमक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस, पेन एंड ब्लीडिंग, राइट। So this is all about the clinical uses of H2 receptor antagonist. Now come toward the side effects. Come toward the side effects of H2 receptor antagonist, right. First point is mental status changes, right। कौन कौन सी मेंटल स्टेटस चेंजेस हो सकती हैं, कंफ्यूजन, ठीक है, और नेक्स्ट इज एजुटेशन, एजिटेशन, ओके। और ये कब होता है, जब हम इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, जब कोई पेशेंट इमरजेंसी के अंदर हो और वो स्ट्रेस में हो या वो उसको कोई प्रॉब्लम हो। जाहिर सी बात है, जब कोई बंदा इमरजेंसी में होता है ना हॉस्पिटल के अंदर, जाहिर सी बात है वो परेशानी में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो उस टाइम पर उसको ये वाली ड्रग्स वैसे भी जा रही होती हैं साथ, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर हो जाता है उस टाइम बंदे को, तो ये वाली ड्रग्स वैसे ही साथ दे देते हैं। तो अगर ये वाली ड्रग्स क्या होता है, ये वाली ड्रग्स अगर इमरजेंसी में पेशेंट हो, और इन ड्रग्स को हम क्या करें, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ये यूज़ हो रही है, इमरजेंसी में, और ज़ाहिर सी बात है इमरजेंसी में बंदा जो है ना वो अपनी होशो-बाश में नहीं होता, तो उसको फिर आईवी या ड्रग्स लगाते हैं, ठीक है, इंट्रावीनस। आईवी का क्या मतलब है, इंट्रावीनस, या जब वो पेशेंट किधर होता है, आईसीयू के अंदर होता है, किधर होता है, आईसीयू के अंदर, ठीक है, तो ये वाली ड्रग्स उसको आईवी लगाते हैं इंट्रावीनस रूट के जरिए, ठीक है, ओके। और ये जो साइड इफेक्ट्स है, कन्फ्यूजन, एजिटेशन, एजिटेशन में होता है कि बंदा जो है ना ऐसे ही जो है ना वो उसको अजीब अजीब से, मतलब कि वो उसकी हाइपर रहता है, हाइपर हो जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन मतलब उसको कोई समझ नहीं आ रही, तो ये मेंटल चेंजेस है। और ये सबसे ज़्यादा किस ड्रग से होता है, साइमेटिडियन से, किससे, साइमेटिडियन से, राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज गायनिकोमेस्टिया, गायनिकोमेस्टिया, गायनिकोमेस्टिया,
ठीक है, ये है क्या बेसिकली गायनिकोमेस्टिया? इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज इन मेल्स। मेल्स के अंदर उनका ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, लिसन एंड रिमेंबर, ये भी ज्यादा किस ड्रग की वजह से होता है? साइमेटिडीन से। किसे? साइमेटिडीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट एंड इट इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन वाइवा क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज मेन साइड इफेक्ट ऑफ साइमेटिडीन, गायनिकोमेस्टिया, साइमेटिडीन? इसमें होता ये है कि बिकॉज यू पीपल नो दैट कि इंक्रीज ब्रेस्ट साइज इन मेल्स, ठीक है। तो आपको पता है मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन मेल के अंदर रिलीज होता है, जो कि जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे डायूरेटिक्स, मैंने आप लोगों को बताया था स्पाइरोनोलैक्टोन, बताया था ना, स्पाइरोनोलैक्टोन इज आल्सो एसोसिएटेड विद द गायनिकोमेस्टिया एंड साइमेटिडिन इज आल्सो एसोसिएटेड विद गायनिकोमेस्टिया। तो जो ये टेस्टोस्टेरॉन होता है या एक एक प्रिकर्सर होता है टेस्टोस्टेरॉन की, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं इसको? डाईहाइड्रो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन। ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है किसका? टेस्टोस्टेरॉन का। तो ये क्या करता है, मेल्स के अंदर जाता है और उनके मेल्स के अंदर जाता है, ठीक है। और मेल्स के अंदर जो मेल की जो ब्रेस्ट होती है उसके ऊपर इसके रिसेप्टर होते हैं और उनको बोलते हैं हम नेगेटिव रिसेप्टर ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मतलब कि ये वहाँ पे जाता है और ब्रेस्ट के साइज को नहीं बढ़ने देता। किसमें? मेल्स में, क्योंकि पता है मेल्स के अंदर तो ब्रेस्ट साइज कम होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। तो इसके लिए मतलब हुआ कि जो टेस्टोस्टेरोन है, ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, ये मेल के अंदर क्या करता है? ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज नहीं होने देता। तो जो साइमेटिडिन होती है, नॉर्मली क्या होता है कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाइंड्स विद नेगेटिव रिसेप्टर एंड प्रिवेंट ब्रेस्ट साइज इंक्रीज। मतलब कि वो ब्रेस्ट की साइज को नहीं बढ़ने देता। लेकिन ये जो साइमेटिडिन होती है, ये क्या करती है? ये बेसिकली इस जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, इसको अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होने देती, इनहिबिट कर देती है इसको, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है मेल के ब्रेस्ट के ऊपर, वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उनका साइज इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का काम ये होता है कि वो ब्रेस्ट साइज को नहीं बढ़ने देता होता। ओके, ये तो हो गया हमें मेल्स के अंदर। अब फीमेल्स के अंदर क्या होता है? फीमेल्स के अंदर इट इज एसोसिएटेड विद गैलेक्टोरिया, विद गैलेक्टोरिया, गैलेक्टोरिया। ये क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल विदाउट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जाहिर सी बात है, फीमेल के अंदर क्या होता है, जब वो प्रेगनेंसी उनमें होती है तो उसके बाद उनकी ब्रेस्ट से जो होता है ना, वो मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस गैलेक्टोरिया, अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई लेकिन जो है ना वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये ज्यादा किस केस में? ड्रग्स का साइड इफेक्ट, और ये ड्रग का साइड इफेक्ट है, ये भी साइमेटिडीन की वजह से, ये भी साइमेटिडीन की वजह से होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो साइमेटिडीन है वो जो है ना वो प्रोलैक्टिन नहीं होता, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, उसका साइज ज्यादा, सॉरी, उसका लेवल बढ़ा देता है किधर? फीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको पता है प्रोलैक्टिन इज रिस्पांसिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन द फीमेल्स। तो ये उसका लेवल बढ़ा देता है, जो कि अभी तक इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि साइमेटिडीन जो है ना वो एक और परिकर होता है, एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल। ये जो प्रोलैक्टिन है ना, इससे बनता है, एस्ट्राडायोल से, प्रोलैक्टिन इससे बनता है, ठीक है। तो ये इसके साथ इंटरफेयर करके ना, तो इसके लेवल को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ब्रेडी ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। वो कैसे होता है? अब ये देखो, ये एक नई बात है, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी ये बात, कि जो हिस्टामिन है इसके रिसेप्टर होते हैं हार्ट के ऊपर भी, H2 रिसेप्टर्स। किस होते हैं? हार्ट के ऊपर H2 रिसेप्टर्स, जो कि हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो ये वाली ड्रग्स हार्ट के ऊपर इन रिसेप्टर को क्या कर सकती हैं? ब्लॉक कर सकती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी दिल की धड़कन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये एक और इसका साइड इफेक्ट है, ब्रैडिकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट। फिर उसके अलावा बाकी डायरिया हो सकता है, ठीक है। और बाकी लेस, जिसको हम कह सकते हैं ना कि सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट हो, जिसमें डायरिया है, हेडेक है, फटीग है, ठीक है, ये हो सकती है हेडेक एंड फटीग, हेडेक एंड फटीग।
So this is all about the pharmacology of H2 receptor antagonists. Pharmacology of the H2 receptor antagonist: cimetidine, ranitidine, nizatidine, famotidine. Mechanism of action of pharmacodynamics. H2 receptor antagonists block H2 receptor on the parietal cells and suppress the gastric acid secretion. These drugs not inhibit the H1, H2, and H4 means have lesser effect. Okay, pharmacokinetics. Cimetidine, ranitidine, and famotidine, these drugs undergo less first pass metabolism. Is that sorry, high first pass metabolism. But in case of nizatidine, this undergo very less first pass metabolism. Excretion फिजिक्स की तरह भी होती है और यूरिन की तरह भी होती है. क्लिनिकल यूजेस में GERD है, पेप्टिक अल्सर है, डिस्पेप्सिया, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस. साइड इफेक्ट्स में मेंटल स्टेटस चेंजेस है जिसमें कंफ्यूजन एजिटेशन है और ये ज़्यादा इमरजेंसी में होता है. इसमें सैमेटिडीन का रोल है गैनिकोमास्टिन इंक्रीज इन द ब्रेस्ट साइज इन द मेल और ये भी सैमेटिडीन है जिसमें डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का रोल है. गैलेक्टोरिया इसमें क्या होता है प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होती है एबनॉर्मल इन फीमेल्स विदाउट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. ब्रेडिकार्डिया आई टू रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से ये आपको पता है H2 रिसेप्टर जीएस सिस्टम से लिंक्ड है. तो ये वहाँ पे भी अगर हिस्टामिन का लेवल ज़्यादा हो जाए किसी वजह से, ठीक है, तो तभी आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है. तो ये उसको वहाँ पे भी इनहिबिट कर सकती है क्योंकि ये अब ड्रग पूरी पूरी बॉडी में जाके जहाँ जहाँ पे भी H2 रिसेप्टर होंगे ना उनको इनहिबिट करेगी. उसके अलावा डायरिया, हेडेक और फटीग, दीज आर वेरी लेस फ्रीक्वेंट और लेस सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट. दिस इज ऑल अबाउट द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट.